Hello, am I audible? Dear student, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. What is the answer of this expression? I think we'll do up to this point. We have done up to this point, like if this reducing the Boolean expression, and next it is given to you in homework. What is the answer of this expression? Reduce expression? AB. AB. ए बी किसी ने ट्राई किया है डायरेक्टली, क्योंकि मैं पीपीटी आई थिंक क्लासरूम में भी अपलोड की है, सो यू कैन डायरेक्टली सर्च फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर आल्सो। अपनी नोटबुक में ट्राई किया था सबने? Yes, ma'am. ओके, चलो अपनी स्क्रीन शेयर करके बताओ, जिसने भी ट्राई किया है वो कोई भी एक दो मुझे दिखाओ, तो मुझे पता चलेगा कि आप कर रहे हैं मतलब। Yes, ma'am. Okay, you to go at the right hand side, present now, and after that choose first option. It is present your entire screen, so it will be visible to all. अपने मोबाइल में लिया फिर भी आप कर सकते हैं। Please share your photo or snapshot. आपने जो नोटबुक में लिखा है ना उसको उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन सिंपली शेयर द स्क्रीन। वो पिक्चर आपको दिखानी है। ओके आयुषी, आंसर इज इक्वल टू ए बी। और किसी ने ट्राई किया है? Okay, Boolean algebra, rules of Boolean algebra, we have already studied De Morgan theorem, proof of De Morgan theorem, and reduce the expression. Variable and literal. What is variable and what is literal? चलो कौन बताएगा मुझे? क्या difference है? What is the difference between variable and literal? Please switch on your mic and just tell me. Don't write in chat, because if I share the full screen, so वो मुझे visible नहीं होगा. What is the difference between variable and literal? Hello. Yes.
Am I audible? Yes, continue. Ma'am, literals are the total number of letters present in any side of the Okay. expression. Okay. And variables Variables are particular variables like x, y, and z. like x and y. Okay, done. Okay, so reduce the expression. We have tried numbers of example. ये फर्स्ट मैंने किया था, आपको एक होमवर्क में दिया था. ओके, तो इसमें कैसे रिड्यूस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी नहीं किया है प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए. ओके, फर्स्ट कैसे इसको आपको करना है, यहाँ पे देखो. फर्स्ट ये एक्सप्रेशन है, क्या अप्लाई किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डैश है, होल डैश, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम. डी मॉर्गन थ्योरम क्या स्टेटमेंट है? व्हाट आर द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल. दिस पर्टिकुलर डी मॉर्गन थ्योरम वी हैव टू अप्लाई हियर. सो प्लस इट इज कन्वर्टेड इनटू डॉट, एंड जो भी वेरिएबल्स है उसका क्या हो जाएगा? डैश. नाउ again we can apply the De Morgan theorem, but for second De Morgan theorem जो product वाला है, like yes this one, second, complement of product of variable is equal to sum of their individual complements. So again we have to apply the second De Morgan theorem. ठीक है, for this as well as for this. So it is a dash plus b dash plus a dash. C का already dash था ही, so it is a dash plus c. Okay, now simply open this bracket and multiply all these values. Okay, so it is called as a distributive law. So we can simply write here it is a distributive law. Okay, after that, if it is a dash into a, so we can consider only one time. Okay, so it is only a dash. Next it is a c dash, a dash c. Next it is a c dash, b dash, a dash, plus next it is a c dash, b dash and c. Okay. So now observe these terms. Ma'am, your screen is not visible. Okay, my screen is not visible. No, ma'am. Okay, I again share. Wait. उस स्क्रीन पे आप पिन कर दीजिए, क्योंकि बाकी सब ने प्रेजेंट किया था ना, तो इसलिए विजिबल नहीं होगा. कोई भी स्टूडेंट उस पे पिन कर दो. मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं कर देती यहाँ से. Now it's visible now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so if you multiply all these terms, so observe this term, क्या क्या common है? So not it's like a common, but if you observe the third term, first, second and third, so it is c dash into c. So we can consider as a 0, because c into c dash क्या होगा? 0. If you consider c is equal to 1 and c dash is equal to क्या होगा? 0. So it is a 1 into 0 means 0. Means कोई भी term में अगर particular variable और उसका complement present है, so उसका multiplication क्या होगा? 0. Same for fourth term, it is also 0. Now open the bracket. So again it is a distributive law. Okay, open this bracket. So again a into a dash 0, a into a dash 0. So only ab remaining. इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल. स्टार्टिंग में आपको डी मॉर्गन थ्योरम ही अप्लाई करना है, उसके बाद सारे ब्रैकेट ही ओपन करने हैं. एंड कीप इन माइंड दैट लाइक a इंटू a डैश क्या होगा? 0. सो यू कैन इजीली ऑब्टेन दिस ab. ओके, चलिए इसका आंसर फाइंड कीजिए. मैंने यहाँ पे इसको सोल्व नहीं किया है. फर्स्ट वन, f इज इक्वल टू a प्लस b डैश c होल डैश इन नेक्स्ट ब्रैकेट a b डैश प्लस a b c. उसका आंसर आ रहा है 0.
ओके तो स्टार्टिंग में मुझे देखो फर्स्ट टर्म, ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म, यू टू अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम, फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कीजिए, उसके बाद आगे होगा। और आंसर बताइए, इट इज एफ इज इक्वल टू 0 आ रहा है? ट्राई इन योर नोटबुक एक्सप्रेशन 1। आंसर आ रहा है एफ इज इक्वल टू 0। यस मैम। ओके, ऑब्जर्व द सेकंड टर्म, उसमें से क्या कॉमन निकलेगा? ए। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? बी डैश प्लस बी सी। तो कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है इस पे? आप इसमें से ए कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा? बी डैश प्लस बी सी। सो वी कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी डैश प्लस बी एंड बी डैश प्लस सी। इन दिस वे भी आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो भी करें आंसर क्या आना चाहिए? 0। मैम यस। अगर हम पहले टर्म में डी मॉर्गन लगा के हाँ। और जो पूरा है वो सब्ट्रैक्ट कर दे तो नहीं होगा? सब्ट्रैक्ट मींस ओपन कर दे। हाँ, ओपन कर दे तो हाँ तो हो सकता है, आपका आंसर एफ इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। आ जाता है मैम। ठीक है, तो और वो एक्चुअली ये सिंपल इक्वेशन है, अदरवाइज अगर आपकी इक्वेशन है उसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स ज्यादा है, सो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स व्हाई दिस बूलियन अलजेब्रा प्रोवाइड्स द लॉ। सो जब तक है तब तक आपको लॉ का ही ट्राई करना है, अगर नहीं हो रहा तो यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड फाइंड द आंसर। ओके मैम। ओके, सबका आ रहा है ना एफ इज इक्वल टू 0? नाउ नेक्स्ट ट्राई करो, अगर किसी को डाउट है तो बताओ, तो जिसका भी हो गया वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा। सबका आ रहा है एफ इज इक्वल टू 0? ओके, ट्राई फॉर नेक्स्ट। एफ इज इक्वल टू, सेकंड के लिए ट्राई कीजिए, एफ इज इक्वल टू इन ब्रैकेट बी प्लस बी सी, नेक्स्ट टर्म इट इज ए बी प्लस बी डैश सी, एंड उसके बाद नेक्स्ट टर्म इट इज ए बी प्लस डी। ओके, आई जस्ट गिव यू द हिट। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या अप्लाई होगा? बी प्लस बी, एंड नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? बी प्लस सी। सेम फॉर हियर, बी प्लस बी डैश, इट इज ए 1 एंड बी प्लस सी। उसके बाद सारे ब्रैकेट को ओपन कर देना एंड फाइंड आउट इट्स वैल्यू इज बी और नॉट। फर्स्ट 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा।
ओके डन. F इज इक्वल टू बी आ रहा है आंसर. If you finish, then please let me know. फिनिश हुआ किसी का? F इज इक्वल टू बी आ रहा है. हेलो. Hello. हाँ. I'm not getting answer. ओके. F इज इक्वल टू बी नोट नहीं आ रहा है. और किसी ने फाइंड No. किया? आ रहा है किसी का? No, ma'am. नहीं आ रहा है. F इज इक्वल टू बी. Okay, then try after lecture, or I include this solution of this exercise in my next lecture. Okay, अभी इसमें आपको नहीं बता सकती हूँ मैं, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सॉल्यूशन है ना वो इसमें कॉपी पेस्ट कर दूँगी. सो वी कैन फाइंड इट. F इज इक्वल टू बी. बट आप ट्राई करना, उसका आंसर भी आ रहा है. एंड जो थर्ड है, शो दैट, वो आप राइट कर लो. आप आफ्टर लेक्चर इन होमवर्क यू कैन ट्राई. थर्ड, शो दैट. आपको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS. प्लीज जस्ट नोट डाउन expression number 3 and try in your homework. ओके, यहाँ पे बुलियन एल्जेब्रा कंप्लीट हो गया. बुलियन एल्जेब्रा, numbers of laws, and how we can reduce the expression in minimum numbers of literals. You have to practice the numbers of expression. आपकी बुक्स दोनों मैंने शेयर की है इन योर गूगल क्लासरूम, स्पेशली फॉर आनंद कुमार. उसमें नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल है, सो यू कैन प्रैक्टिस इट दिस रिड्यूस द एक्सप्रेशन इन मिनिमम नंबर्स ऑफ लिटरल्स. नाउ नेक्स्ट वन, इट इज अ नंबर सिस्टम. It's a very important, asked in GTU many times, और like ये फिक्स ही होगा ही कि आपको कन्वर्जन देंगे कि डेसिमल टू ऑक्टेल, कन्वर्ट दिस डेसिमल टू ऑक्टेल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल. asked in 3 marks as well as 5 marks. So it is a number system conversion. It is a conversion among the bases. बेस मतलब लाइक डेसिमल है आपका नंबर के 153, तो उसका बेस क्या है? डेसिमल. इफ इट इज अ बाइनरी तो उसका बेस क्या रहेगा? 2. इफ इट इज अ ऑक्टेल तो उसका बेस क्या रहेगा? 8. एंड इफ इट इज ए लाइक हेक्साडेसिमल तो उसका बेस क्या रहेगा? 16. सो वी हैव टू कन्वर्ट कि डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टेल टू डेसिमल. These are the numbers of conversion. We have to check and calculate one by one. Okay, first one, it is a decimal to binary. Like मुझे एक number दिया है 10 या फिर 11 और 153, any decimal number. We have to convert into binary form. And what is binary form? Consists of 1 and 0. So what is the procedure?
First of all, if like decimal number is given to you, so you to divide this number by 2 and keep the track of remainder. आपका जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका आपको ट्रैक रखना है, मतलब जो भी रिमाइंडर है उसको आपको क्या करना है, राइट करना है. और उसको कंसीडर कैसे करना है वो भी बाद में आएगा. बट इफ यू कंसीडर, इट इज नॉट अ फिक्स. ओके, फर्स्ट रिमाइंडर इट इज अ बिट 0, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड अपॉन नंबर पे फिक्स है कि आपका फर्स्ट रिमाइंडर है वो 0 आएगा या 1. ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पे लिखा है. ठीक है. So first remainder is bit 0 and second remainder is bit 1 and so on. We have to calculate remainder and divide this number. First of all divide and write down remainder. Again divide this number by 2 and write again remainder. Again this number divide by 2 and write remainder. अब कैसे करना है यहाँ पे देखो. फर्स्ट आपको डेसिमल नंबर यहाँ पे दिया, इट इज ए 125. So divide this 125 by 2. Divide this 125 by 2. So we are getting it is a 62. If you consider like 62 into 2, so कितना होगा 124. Okay, मैं like 62 लेती हूँ. So 125 divide by 2. So 62 into 2 क्या होगा 125. तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1. Okay, same for here 62. So if we divide by 2, so it is a 31 into 2 क्या होगा 62. So remainder क्या रहेगा 0. Now divide this 31 by 2. So divide होगा नहीं because 15 into 2 क्या होगा 30. So remainder कितना आएगा 1. तो 1 by 1 वो आपको लिखना है यहाँ पे. Same for 7 into 2 कितना होगा 14, बट यहाँ पे क्या है 15. So मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1. Same for divide by 2. 7 divide by 2, so it is a 3. 3 into 6, so 3 into 2 means 6. So यहाँ पे 7 है, so 7 minus 6, so रिमाइंडर क्या रहेगा 1. Same for here, if 3 and divide by 2, so 2 into 1, so 2, so 3 minus 2, 1, so रिमाइंडर क्या रहेगा 1. बट यहाँ से छोड़ नहीं देना है. इफ इट इज ए 1 देन अगेन डिवाइड बाय 2, बट मल्टीप्लाई किससे करना है 0. सो इट इज ए 2 into 0. ओके, सो 1 minus 2 into 0, सो 1 minus 0, तो आंसर क्या आएगा 1. सो आपको सिंपली जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिखना है. आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे ना कि लाइक 125 बाय 2, तो एक्चुअल में आप करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 125 बाय 2. वो आपको जो भी वैल्यूज है वो देगा, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं. बट हमें किसका ट्रैक यहाँ पे रखना है, रिमाइंडर का, कि आफ्टर कैलकुलेशन लास्ट में क्या बचा 1. आफ्टर कैलकुलेशन इफ आई डिवाइड 62 बाय 2, तो लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे 31 into 2 मीन्स 62, तो क्या रहेगा 0. सेम फॉर हियर. ओके, अगर मैं डिवाइड करती हूँ 31 को 2 से, तो लास्ट में क्या रहेगा 1 रिमाइंडर. सेम फॉर हियर एंड लास्ट तक हमें जाना है. सिंपली आपको रिमाइंडर जो आ रहा है डिवीजन करते जाना है 1 by 1 सब नंबर का. ठीक है, फर्स्ट मैंने 125 का डिवीजन किया बाय 2, फिर 62 डिवाइड बाय 2, फिर 31 डिवाइड बाय 2, फिर 15 डिवाइड बाय 2, और सारे रिमाइंडर मुझे यहाँ पे लिखने हैं. And consider this all reminders in reverse order, not in forward direction, but you have to consider in a backward direction. That's why here we can write like 1 1 1 1 1 0 and 1. It is your binary number. Okay, you have to write in this way in backward direction. Okay, same for आपको ये डेसिमल दिया था. Okay, so we can find out binary number in this way. But if it is a fraction, means integer दिया था, sorry integer, it is a 125. But if it is a fraction part, so क्या करना है, if provide the fraction part and if it is a decimal and we have to convert into binary, so उसके लिए another method, we have to multiply each and every number by 2. like मैंने यहाँ पे multiply किया 0.6875 into 2. So answer क्या मिला मुझे 1.3750. Now we have to separate out this integer and fraction. So integer क्या है इसमें 1
एंड फ्रैक्शन क्या है, इट इज ए 0.3750. ओके, सो सेम फॉर, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको नहीं लेना है मल्टीप्लीकेशन में सेकंड टाइम के लिए, किसको लेना है, फ्रैक्शन को ओनली. सो अगेन 0.3750 मल्टीप्लाई इंटू 2, सो क्या रहा 0, और यहाँ पे क्या मिला 0.75. सेम फॉर 0.75 इंटू 2, सो मुझे क्या मिलेगा 1.5. सो इंटीजर क्या हुआ 1. व्हाट इज फ्रैक्शन 0.5. अगेन 0.5 इंटू 2, सो मुझे क्या मिला 1. मीन्स योर इंटीजर बिकम्स 1 एंड फ्रैक्शन पार्ट क्या हो रहा है 0. It is not a like all time complete 0, but maybe like 0.001, 0.002 something हो सकता है, but we assume that fraction part is 0. So we have to try or repeat this procedure up to this fraction part would be 0 and integer becomes 1. जब तक ये 1 नहीं बन जाता हमें ये प्रोसीजर स्टार्ट रखनी है, और जैसे ये 1 आ जाता है इसको स्टॉप कर देना है. एंड उसकी कंपैरिजन में रिवर्स है, उसमें हमने बैकवर्ड कंसीडर किया था. Now we have to consider the forward integers. Forward means 1, 0, 1, 1. So answer क्या आएगा यहाँ पे 0 point क्यों लिया, because it is a fraction part. 1, 0, 1, 1. Okay, आपको like combined number दिया है 125.6875. So you have to place the integer part binary number. क्या था, it is a 5 times 101. So we have to write this 5 times 101 here. If integer and fraction both are combined, then and then. If separate दिया है, so we have to find out the separate. But main क्या है, इसमें divide करना है and remainder को store करना है. And अगर fraction part आपको दिया है, then we have to multiply and keep the track of integer and fraction. If fraction is approximately 0 and integer becomes 1, then we have to stop our procedure and just count down or means consider your integer from forward direction 1, 0, 1, 1. सेम एक यहाँ पे दिया है, देखो आप 72 डिवाइड बाई 2. ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो. ओके, और मैंने यहाँ पे जो लिखा था उस तरह से भी आप लिख सकते हैं. क्या दिया देखो इसमें 27 बाई 2. सो मुझे क्या मिलेगा वो 13. सो रिमाइंडर क्या रहेगा मेरा 13 इंटू 2, सो 26. बट यहाँ पे क्या है 27. सो रिमाइंडर क्या रहेगा यहाँ पे 1/2 दिया है, क्योंकि डायरेक्ट कैलसी में अगर आप फाइंड करेंगे तो ऐसा मिलेगा. बट वी हैव टू कंसीडर अ कंप्लीट इंटीजर, राउंड फिगर मीन्स वी हैव टू कंसीडर. सो इट इज ए 1. सेम फॉर 13/2. सो क्या मिलता है 6. It is a question 6, but reminder क्या रहेगा again 1 or 1/2, but if you rounding off this value, so it is a 1. Okay, same for 6/2. तो क्या मिलेगा 3, और रिमाइंडर रहेगा नहीं, because 3 into 2 क्या होगा 6. So remainder is also 0. Same for 3/2. So क्या रहेगा 1, but 2 into 1 means 1, तो 3 minus 2 क्या रहेगा 1. और you can consider 1/2 rounding of this value and 1. आप कैलसी में करेंगे तो ये 0.5 वगैरह मिलेगा, सो उसको राउंडिंग ऑफ कर देना है. नेक्स्ट 1/2, उसको भी 1 को भी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो इट इज ए 0 और रिमाइंडर क्या रहेगा 1/2, सो इट इज ए 1. तो सिंपली आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर का रिकॉर्ड रखना है. ठीक है, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई बाई 2. सेम 6 को भी डिवाइड करेंगे, 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे एंड 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे. ये जो मैंने यहाँ पे किया वो आप करना, वो ज्यादा इजी रहेगा. 1 by 1 आप करेंगे तो. सेम फॉर अगर आपको कौन सी वैल्यू दी है 3, यहाँ पे पूरा लिखना है. ओके, ये पूरा नंबर था, मैंने यहाँ पे ओनली 27 का कैलकुलेट किया है. नाउ फॉर 0.315, सो 0.315 इट इज अ फ्रैक्शन पार्ट, सो डिवीजन नहीं होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 0.315 इंटू 2, सो यहाँ पे क्या रहा 0 और यहाँ पे क्या आया 0.630. अगेन क्या होगा 0.630 इंटू 2, तो क्या बचा 1 एंड 0.26. अगेन 0.26 इंटू 2, सो क्या रहेगा यहाँ पे इंटीजर क्या है 0 और नंबर क्या आएगा 54.
2। यहाँ पे एक्चुअली टोटल लिख के नहीं दिया है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, 0.26 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 0.52। ओके, उसमें जो जीरो है वो आपका इंटीजर रहेगा एंड 0.52 क्या रहेगा फ्रैक्शन। सेम इफ यू कंसीडर 0.52 इंटू 2, सो आंसर क्या आएगा 1.04। 1 it is a integer and 0.04 it is a fraction, means your fraction part it is a partially zero, not completely zero, but we have assumed that like it is a zero. So आपका integer क्या बन गया, integer becomes 1 and fraction part becomes 0. So now we have to stop. But by chance ऐसा हुआ कि ये stop ही नहीं हो रहा, we have continuously found this fraction part like 0.52, 0.1, 0.2, 0.3, but not approximately 0, और integer भी 1 नहीं हो रहा है, then आपको 5 और 6 स्टेप करके यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ देना है। डॉट 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 मीन्स इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यू, यहाँ पे लाइक डॉट डॉट करके छोड़ देना है, यहाँ से डॉट 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 करके छोड़ देना है, सो इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस सिचुएशन। ओके, एंड आफ्टर दैट 27 का क्या था बाइनरी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन हमें कंसीडर करना है, सो 1 1 0 1 1, एंड इसके लिए फॉरवर्ड में, सो इट इज a 0 1 0 1, write this complete binary number. This one it is for 27 and this one for the 0.315. We have to combine integer binary numbers and fraction binary numbers. So total decimal number 27.315 we can represent in binary by using this sequence. Okay, so it is a decimal to binary. Simply if it is the integer part, then divide by 2 and keep the track of remainder and consider into backward direction. Same for if it is the fraction part, then multiply by 2, okay, and keep the record of integer, and procedure it is a continue up to this integer becomes 1 and fraction becomes 0 and consider in forward direction. Okay, किसी को डाउट है इसमें डेसिमल टू बाइनरी? हेलो, okay No, ma'am. okay okay now find out or calculate this decimal number and convert this decimal number into binary. चलो एक्सरसाइज है, फर्स्ट का फाउंड करो, 32 आपको दिया है, सो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर पार्ट है, सो डिवाइड बाय 2, एवरी टाइम डिवाइड बाय 2 एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ रिमाइंडर। फर्स्ट क्या आएगा 16 इंटू 2 मीन्स 32, सो फर्स्ट इट इज a 0, उसके बाद 16 को डिवाइड करना बाय 2, 8 से डिवाइड होगा, सो इट इज ऑल्सो 0। Okay, again 4, 8 divide by 2, so it is a 4, so remainder क्या आएगा 0, 4 divide by 2, so again 0, 2 divide by 2 again 0, and last क्या होगा 1, 1 divide by क्या आएगा 2, so it is a 1, that's why it is a 1 0 0 0 0 0। आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेट कीजिए, समझ आ जाएगा।
ओके आंसर आ रहा है? थर्टी टू का बाइनरी ओके इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो प्लीज टेल मी, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके ट्राई फॉर सेकंड. 555 उसका मैंने नहीं लिखा. अब बताइए चलिए मुझे क्या आ रहा है. यू कैन राइट इन चैट. Yes, it is a 100 101 011. ट्राई कर रहे हैं या डायरेक्टली, क्योंकि नेट पे भी कन्वर्जन अवेलेबल है. यू कैन डायरेक्टली लाइक ऐड द नंबर एंड फाइंड द कन्वर्जन. वो नेट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन कन्वर्टर है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं होगा. सो यू टू ट्राई इन योर नोटबुक ओनली. नाउ ट्राई फॉर नेक्स्ट नंबर 12999. Yes, answer is correct. May I just write in this so you can 1100 1011. बाकी सब ट्राई कर रहे हैं ना? आंसर आ रहा है सबका? एंड ओके एंड प्लीज इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन टेल मी, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको समझ आ गया है दैट्स ओके. वैसे सिंपली आपको डिवाइड ही करना है एंड रिमाइंडर का ट्रैक ही रखना है एंड कंसीडर इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन. And if it is fraction part, then convert means consider into forward direction. Okay, next try करो चलो. Integer plus fraction. It is a 157.63. For integer 157, you to divide by 2, and for fraction part, you to multiply by 2.
and wait up to fraction part becomes 0 and integer becomes 1. आप जस्ट ए नंबर लिख दीजिए, उसके बाद मैं आगे का आपको वापस रिप्रेजेंट करती हूँ तो आपको जल्दी आइडिया आएगा. 157.63 इट इज योर नंबर. ओके, यू कैन कंसिडर इन दिस वे. ओके, इस तरह से करना है. मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल पार्ट 1 इट इज ए इंटीजर एंड फ्रैक्शन इट इज ए 0.3750. अगेन मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 2 and again write integer and fraction, and procedure it is a continue of 2, integer becomes 1 and fraction becomes 0. Not like completely 0 but approximately 0, and consider into forward direction. लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, लाइक 101 4 times 0 101 and 0. Okay, I think okay, if it is a continue, I think don't so it is continue, otherwise it is a continue. Yes, ma'am. Okay, then just you can put and make sure this number. That's why I like in this particular PPT it plays 0 because it is a continue. Otherwise last number is always 1. Why it is a 1 last number? Because when and this integer becomes 1, we can stop here when this integer becomes 1. That's why last always क्या आएगा 1. So मैंने यहाँ पे 0 लिखा, मतलब वो कंटिन्यू होगा लास्ट तक. किसी का स्टॉप हो रहा है या सबका कंटिन्यू है? Okay, now try for last 64.125. Okay. सबका हो गया लास्ट 64.125. Okay, I think I have to stop here because अटेंडेंस भी लेनी है. नेक्स्ट टाइम आपका जो भी है उसका रिवर्स आएगा. हमने कौन सा किया? डेसिमल टू बाइनरी. नाउ इट इज बाइनरी टू डेसिमल. ऐसे नंबर्स ऑफ कन्वर्जन है. In starting there is a no problem, but if we like study all the conversion, then it is a confusion कि क्या करना है. But if you clear in particular number conversion, then it's very easy. You can easily solve this.